اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ آج ہم انشاءاللہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 15 سے آگے اپنا سبق شروع کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی فما ربحت تجارتہم وما کانوا مہتدین۔ یہی لوگ ہیں جن کی بات ہو رہی ہے منافقین کی، کہ انہوں نے ہدایت کے بدلے میں گمراہی کا سودا کر لیا۔ انہوں نے قرآن کو چھوڑ دیا اور اس دنیا کو انہوں نے اپنے لیے اس کو قبول کیا، دنیا کو پسند کیا، اور بہت ہی بری تجارت ہے یہ، فائدہ مند تجارت نہیں ہے، کیونکہ اس میں ان کو ہدایت نہیں ملی۔ انہی کی مثال ہے مثلہم، مثال ہے ان کی، کمثل الذی، جیسے کہ مثال ہے اس کی، اس بندے کی، اس قوم کی، ذاستوقد نارن، کہ جس نے آگ جلائی ہو۔ منافقین کی مثال اللہ کی ذات اور سمجھانے کے لیے ایمان والوں کے، کہ منافق وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جیسے مثال اللہ کی ذات دے رہی ہے کہ انہوں نے آگ جلائی ہو، فلما اضاءت، پھر جب اس کو روشن کر دیا، ضیاء ہو گئی وہ آگ جو ہے وہ روشن ہو گئی، ما حولہ، اس کا جو ارد گرد کا ماحول ہے وہ اس آگ کی وجہ سے روشن ہو گیا۔ ذہب اللہ بنورہم، تو لے لیا اللہ نے ان کا نور جس سے وہ دیکھ رہے تھے، وترکہم، اور چھوڑ دیا ان کو، فی ظلمات، اندھیروں میں، ظلمتوں میں، لا یبصرون، اور وہ نہیں دیکھ پاتے۔ تو مشرکین جو منافقین ہیں ان کی مثال اللہ کی ذات ایسے ہی فرما رہی ہے کہ جب وہ ایمان کے والوں کے پاس بیٹھتے ہیں، جب اس قرآن کو سنتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محفل میں بیٹھتے ہیں، تو اس کی مثال ایسے ہی ہے کہ جیسے روشنی ہو، اور انہیں روشنی نصیب ہوتی ہے اور وہ دیکھ سکتے ہیں، لیکن پھر جب وہ اس محفل سے نکلتے ہیں، کیونکہ ان کے دل صاف نہیں ہوتے، ان کے دل میں مرض ہے، جیسے ہم نے پیچھے پڑھا تھا، تو پھر ان کو وہ دوبارہ اندھیروں میں کفار کے ساتھ وہ جو ہے وہ گم ہو جاتے ہیں، یعنی کبھی روشنی میں آتے ہیں اور کبھی پھر اندھیروں میں چلے جاتے ہیں۔ ایمان والے جو ہوتے ہیں وہ ہر وقت روشنی میں ہوتے ہیں، کافر جو ہوتے ہیں وہ بالکل اندھیرے میں ہوتے ہیں۔ لیکن یہ لوگوں کی مثال ایسے ہے کہ کبھی یہ روشنی میں آتے ہیں، کبھی روشنی علم ہے، اور کبھی یہ گمراہی میں چلے جاتے ہیں۔ گمراہی جو ہے وہ گناہوں کی ہے اور وہ اندھیرا ہے، اور جب وہ اندھیرے میں چلے جاتے ہیں پھر وہ نہیں دیکھ پاتے، وہ نور ایمانی ان کی ختم ہو جاتی ہے جو اس محفل میں ان کو ملتی ہے، جو قرآن سے ان کو ملتی ہے، اور پھر ان کو کچھ نظر نہیں آتا، اور پھر وہ دنیا کے مفاد میں، دنیا کے اس جو چکر ہے اسی میں پھر پڑ جاتے ہیں۔ تو ان لوگوں کی مثال ایسے ہی ہے کہ یہ بھٹکتے پھر رہے ہیں، کبھی روشنی میں اور کبھی اندھیرے میں، کبھی گناہوں میں اور کبھی نیک لوگوں کے ساتھ بیٹھ کر۔ سمن، یہ بہرے ہیں، بکمن، یہ گونگے ہیں، امیون، اور یہ اندھے ہیں، یعنی ان کے کان ہیں، ان کی زبانیں ہیں، ان کو اللہ نے آنکھیں دی ہوئی ہیں، لیکن یہ نور حق کو پہچان نہیں سکتے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ذات کو اور آج کے دور میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو سنتیں ہیں یہ ان کو پہچان نہیں سکتے۔ اس کے بدلے میں انہیں دنیاوی مفادات جو ہے وہ عزیز ہوتے ہیں۔ تو اللہ کی ذات فرما رہے تھے ان کی مثال ایسی ہے کہ جیسے ان کے کان ہی نہیں ہے کہ حق بات سنیں، جیسے ان کی زبان ہی نہیں ہے کہ حق بات ان کے منہ سے نکلے، ان کے منہ سے نکلے، ان کے دل سے نکلے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، امیون، اور یہ اندھے ہیں، اللہ کی قدرتیں دیکھ رہے ہیں، اللہ کے نور کو دیکھ رہے ہیں، اس کتاب کو دیکھ رہے ہیں، لیکن ان کے پاس وہ آنکھیں نہیں ہیں۔ فہم لا یرجعون، اور یہ اپنی سرکشی میں اور اس میں اتنا زیادہ دور چلے گئے ہیں کہ اب یہ واپس نہیں لوٹیں گے، کیونکہ اللہ کی ذات جو ہے وہ تو سب کچھ سمجھتی ہے۔ اب اللہ کی ذات فرما رہی ہے کہ یہ حق کو جانتے ہوئے جو اس سے اعراض کر رہے ہیں، اس سے بے اعتنائی کر رہے ہیں، تو اب ان کی واپسی نہیں ہے۔ تو جب کسی بھی انسان کو کوئی حق بات پتہ چل جاتی ہے قرآن سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت تھے، تو پھر بھی اگر وہ اپنی مرضی کرتا ہے، اپنے نفس کی بات مانتا ہے، شیطان کی بات مانتا ہے، تو اس سے وہ حق قبول کرنے کی صلاحیت جو ہے وہ اللہ کی ذات چھین لیتی ہے۔ یہ ان لوگوں کی مثال ہے جو کمزور ایمان والے ہیں، جو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھتے تو ان کو کچھ روشنی نصیب ہوتی، لیکن جیسے ہی ہٹتے
फिर शैतान उनको उचक लेता और वो अंधेरे में चले जाते, क्योंकि वो मुनाफिक हैं, उनका दिल कहीं पे मुतमईन नहीं हो रहा, क्योंकि उन्हें दुनियावी मफाद जो हैं वो उससे ज़्यादा नज़र आते हैं जो उन्हें दीन में मिल रहे हैं। और कसीब मिनस समाए, या अल्लाह अब उनकी एक दूसरी मिसाल बयान फरमा रहे हैं, या कसीबिन, जैसे कि ज़ोरदार बारिश हो, मिनस समाई, आसमान से, फी ही, उसमें हो, जुल्मातन, अंधेरा, व रादन, और गर्द, व बरकुन, और बिजली। यानी या एक ज़ोरदार आसमान से बारिश हो रही हो, जैसे उसमें अंधेरा भी आ जाता है जब बादल छा जाते हैं, और बादल के अंदर जो है वो गर्ज भी होती है और बिजली की कड़क भी होती है, चमक भी होती है। यजअलूना असाबिअहुम, और वो ठोंस लेते हैं अपनी उंगलियां, फी अज़ानिहिम, अपने कानों में, मिनस सवाइक, बिजली की कड़क से, हज़रल मौत, और मौत के डर से। तो इन लोगों की मिसाल ऐसे ही है कि जैसे आसमान से बिजली चमकती है और उसमें से वो उस खौफ के मारे बिजली की कड़क से, जैसे आम इंसान को भी आप देखें तो ऐसे ही होता है, जब बिजली ज़ोर से कड़कती है तो वो डर जाता है और वो अपने कानों में उंगलियां डाल लेता है, वो आंखें बंद कर लेता है। तो इनकी मिसाल भी ऐसे है कि जब ये इस्लाम को तरक्की करते हुए देखते हैं और तो फिर इस तरफ हो जाते हैं, जब देखते हैं कि किसी वक्त कुफार का पलड़ा भारी है तो वो उस तरफ हो जाते हैं कि जब उनको बिजली नज़र आती है, कड़क नज़र आती है, तो वो उससे छुपते फिरते हैं और उंगलियां डालते हैं। लेकिन कानों में उंगलियां डालने से, आंखें बंद कर लेने से मौत से भी इंसान नहीं बच सकता, और जो हक है उससे भी इंसान जो है उसको बातिल में नहीं बदल सकता। हक हक ही रहेगा, खा वो आंखें बंद कर लें, कानों में उंगलियां ठोस लें। अल्लाह की ज़ात ने इस दीन को सरबुलंद करना है और ये सरबुलंद हो के रहेगा। तो ये इन लोगों की मिसाल ऐसे ही है कि ये डरे सहमे हुए हैं, इन्हें अल्लाह का डर नहीं है, लेकिन ये बिजली से डरते हैं, ये मौत से डरते हैं, उन सारी चीज़ों से डरते हैं। वल्लाहु मुहीतुम बिल काफिरीन, और अल्लाह की ज़ात तो वो है कि जो काफिरों को घेरे में लिया हुआ है। लेकिन ये मोहलत है दुनिया में, अल्लाह ने जो ज़िंदगी इंसान को दी हुई है, ये मोहलत उनको मिली हुई है कि इस मोहलत में वो चाहे तो ईमान की तरफ रजू कर लें, अगर चाहें तो वो मुनाफिकत में रहें या काफिरीन की तरफ रहें, लेकिन अल्लाह की पकड़ से वो नहीं बच सकते, क्योंकि हर चीज़ अल्लाह के घेरे में। और यहाँ अल्लाह की ज़ात जो है ख़ास तौर पे इन लोगों के बारे में कह रही है कि ये जो समझते हैं कि दुनिया के फ़ायदे हैं और ये वक्ती जो लज़्ज़तें हैं इनसे ये फ़ायदा उठा लेंगे, लेकिन अल्लाह ने इनको घेरा हुआ है। और जैसे ही इस दुनिया में इंसान की ज़िंदगी ख़त्म होगी, उसके बाद फिर असल जो हकीकत है जिसको कुरान खोल खोल के बयान करता है, वो सारी की सारी इंसान के सामने आ जाएगी। यकादू, करीब है, अलबरकू, बिजली, यख्तफु अबसारहुम, उनकी आँखों को उचक ले। अल्लाह की ज़ात जो है अगर ये चाहे तो वो बिजली से जो आंखें बंद करते हैं जब चमकती है, अल्लाह की ज़ात उससे भी और जैसे भी चाहे उनकी नज़र, उनकी बीनाई उसको ले सकती है। कुल्लमा, जब कभी, अज़ा, ज़िया, रोशनी करती है, लहुम, उनके लिए, मशो, चल पड़ते हैं, फी ही, उसमें। जब उनको रोशनी मिलती है, जब वो दीन की रोशनी उनको मिलती है तो वो दीन की तरफ रग़बत होती है, उसकी तरफ चलते हैं। व इज़ा अज़लमा, और जब अंधेरा होता है, जब ये कुफ़ार के पास जाते हैं, जब ये ज़ुल्मत में जाते हैं, अंधेरे में जाते हैं, अलैहिम क़ामू, खड़े हो जाते हैं, फिर सोचना शुरू कर देते हैं कि क्या वो रोशनी में ठीक था या इस अंधेरे में हमें ज़्यादा फ़ायदा और हमें इससे ज़्यादा फ़ायदा उठा सकते हैं, तो वो फिर रुक जाते हैं। और ईमान वाला जो होता है वो जब ईमान पे चल पड़ता है तो उसके सामने अंधेरा आए, उसके सामने रोशनी आए, उसके सामने बिजली आए, उसके सामने मौत आए, वो अल्लाह के हुक्म पे लब्बैक कहता है। लेकिन ये जब उस फ़ायदे की तरफ जाते हैं तो ये चल पड़ते हैं, और जब इन्हें फ़ायदा किसी और चीज़ में नज़र आता है तो ये उस तरफ चलना शुरू हो जाते हैं, फिर रुक जाते हैं दीन के कामों से। जब दीन की तरफ से तकाज़ा आता है, वक़्त देना है, माल लगाना है, तो फिर ये खड़े होकर सोचते हैं कि ये तो हमने बड़ी मुश्किल से कमाया है, ये तो हमने बड़ी मेहनत से कमाया है, ये तो हमारे बच्चों के लिए है, वो क्या खाएंगे, ये करेंगे, तो वो उस दीन के काम से रुक जाते हैं। लेकिन जब बैठते हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात सुनते हैं तो उनके दिल पे असर होता है, तो उस वक़्त होता है। लेकिन चूँकि दिल साफ़ नहीं होता, दिल में बुग़्ज़ भरा हुआ होता है, दिल में कीना भरा हुआ होता है, दिल में कुफ़र भरा हुआ होता है, तो कुफ़र और निफाक के साथ जो है ईमान दिल में रह नहीं सकता।
वलो शाह अल्लाह, और अगर चाहे अल्लाह, ला ज़हबा, तो वो ले जाए, बिसमइहिम व अबसारिहिम, इनके कान और इनकी आंखें। ये अल्लाह की दी हुई नेमतें हैं, अल्लाह जब चाहे इनसे वापस ले ले। अल्लाह ने ये नेमतें इंसान को दी हैं। अल्लाह ने कान का इस्तेमाल भी बताया कि उससे क्या सुनना है, क्या नहीं सुनना, क्या उसके लिए हलाल है, क्या उसके लिए हराम है। अल्लाह ने आंखें भी दी हुई हैं, और अल्लाह ने ये नेमत दे के फिर बताया भी है कि इसका इस्तेमाल कैसे करना है, क्या इससे देखना हराम है और क्या इससे देखना हलाल है, क्या इससे देखना जायज़ है और क्या इससे देखना नाजायज़ है। अल्लाह चाहता है कि जब ये नाजायज़ काम करते हैं, गलत काम करते हैं, अपने कानों का इस्तेमाल, अपनी आंखों का इस्तेमाल, तो अल्लाह चाहे तो वापस ले ले। लेकिन अल्लाह की एक सुन्नत है, अल्लाह ने जो डील दी हुई है किसी को, अल्लाह उस वक़्त तक नहीं पूछता। लेकिन जब वो डील ख़त्म हो जाती है, मौत आ जाती है, क़यामत आ जाती है, तो फिर अल्लाह ने इन हर जितनी अल्लाह ने नेमतें अता की हैं, सुनने की नेमत, देखने की नेमत, ज़बान की नेमत, अक़ल की नेमत, दिल की नेमत, इन सब के हर नेमत का अल्लाह की ज़ात इंसान से हिसाब लेना है कि उसका कैसा इस्तेमाल किया है। इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन क़दीर, अल्लाह हर चीज़ पर कादिर है। जो अल्लाह देने पे कादिर है, उसी तरीके से वो अल्लाह लेने पे भी कादिर है। जब चाहे दे, जब चाहे ले। हम अपनी आंखों के सामने दुनिया में देखते हैं कि कान होते हैं लेकिन सुनाई नहीं देता, आंखें होती हैं लेकिन उनमें बिनाई नहीं होती, ज़बानें होती हैं लेकिन वो बोल नहीं सकती। ये वो अल्लाह की कुदरत है। हर इंसान का आज़ा, हर चीज़ जो है, वो अल्लाह की जो हुक्म है, अल्लाह का जो अमर है, वो है। ये हाथ हिल रहा है, पाँव चल रहा है, दिल चल रहा है, अल्लाह के अमर से चल रहा है। जब अल्लाह का अमर निकल जाता है इसके अंदर से, फिर वो हाथ काम करना छोड़ देता है, वो आंखें, वो कान, वो हर चीज़ इंसान की वो काम करना छोड़ देती है, और अल्लाह हर चीज़ पे कदीर है। अल्लाह ताला हर चीज़ जो चाहता है वो देता है, और अल्लाह का हर हाल में इंसान के ऊपर ये इम्तहान है कि जो अल्लाह ने उसको दिया है, क्या वो उस पे अल्लाह का शुक्र अदा करता है। अल्लाह ने अगर उसको आजमाइश में डाला है, तो क्या उस पे वो सब्र करता है। तो ये सारी की सारी चीज़ें अल्लाह ताला की नेमतें हैं। जो कुछ हमने सही सही पढ़ा, अल्लाह हमारे ज़हनों में, दिलों में बिठा दे। जहाँ जहाँ पढ़ते हुए बोलते हैं हमसे गलतियाँ होंगी, अल्लाह हमें माफ़ फरमा दे, और उन गलत बातों को हमारे ज़हनों से, दिलों से अल्लाह की ज़ात निकाल दे।